फिर जो है हमारा स्वभाव चेंज होगा, हम सुख और शांति का अनुभव करेंगे और आध्यात्म के मार्ग पे अपने आप से चले जाएंगे। Hello everybody, welcome to Compassion India magazine. I am Nandita Kapadia, managing editor of Compassion India magazine, and today we feature Pradeep Shah, new diet system motivator based in Mumbai. Welcome to the bulletin, Pradeep bhai. Namaskar Nandita, and welcome you all, and my regards to Dr. Rupa Shah for having this magazine, and even under this condition continuing with these magazines and giving very essential and important data to the masses. And thanks for inviting me for your program. So let me straight away start with the first question, that you have been vegan for 12 years. What inspired you to go vegan? Yeah, I was vegan since almost 12 years, but I knew the word vegan after the last 7 years. Before that, I never knew the word vegan. I was just traveling across and somebody told me this dairy product is very good. Why don't you have it? So I went there. I took that product and I went to that particular cattle जहाँ पे जानवर को रखे जाते थे. मैंने वहाँ गाय को देखा, बछड़े थे, सब था. So I just out of curiosity I asked him, ये गाय का बछड़ा कितने दिन का है? तो बोलता बस अभी आया, 2-3 दिन का है. So I asked him, इसको क्वेश्चन पूछा कि भैया ये गाय ये बाजू बांधी है, बछड़ा ये बाजू बांधा है, दोनों को अलग क्यों किया है? तो बोलता नहीं, वो तो हम लोग ऐसे ही रखते हैं, मैं तो गाय सब दूध पी जाएगी तो मिलेगा नहीं. So that struck me, and I looking at the eyes of the cow, the mother and that child, isolated from each other. There was a spark inside me. This is grossly wrong. What I'm getting is I'm deceiving somebody's essential food which the nature has created, and this is just a dacoity. And that just moment I decided to quit, and I quit. I didn't know the word veganism. Let me tell you, advantages or disadvantages of quitting dairy products also I was not aware. This was grossly wrong. That spark was there with me, and I was an individual person, isolated, and but vegan was also not there with me. Then last 7 years when I came across all this health and all these issues, and when I joined that seminar, I came across the word vegan and then Ahimsa festival and so on. So without understanding the word vegan, I was a vegan. So this is how it is. It is just a spark of a situation. There was no other thing it was required. And it was fairly easier for me to quit milk and dairy products. You are also a vegan Jain. So what are your views about Jainism and veganism? See, in very short, I can tell you, 2600 years back, Bhagwan Mahavir has told all these things very precisely. In fact, what he has stated is vegan plus 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 plus, means more than above veganism. He is almost talking of quitting lot many things which today also we are talking about. So Mahavir Swami has stated Ras Tyag and Vighay Tyag, in which milk and dairy products, all animal products, milk and dairy product, he has precisely named: quit butter, quit milk, quit ghee and curd. तो दूध, दही, घी, मक्खन छोड़ने की बात उन्होंने की है, बहुत प्रिसाइजली की है, और उसका मीनिंग भी जो दिया है कि ऐसी खुराक जो आप में वेग लाए, आवेग लाए, शरीर और मन को विकृत करे, विकार वासना पैदा करे और आपको दुर्गति के मार्ग पे ले जाएगा, ऐसा बहुत क्लियर उन्होंने लिखा है. और ये उनकी अंतिम देशना, मीन्स द लास्ट प्रीचिंग ऑफ महावीर वाज दिस. एंड इन बहुत सारे सूत्रों में उन्होंने कहा है कि ये जो है रस त्याग के और विगय त्याग की उन्होंने बात की है. अनफॉर्चुनेटली इस चीज को किसी ने बताया नहीं है और किसी ने इसका कोई यूज भी नहीं किया है सही तरीके से. इसलिए आज जैनियों की भी हालत देखिए तो वो भी अन्य धर्मी के जैसे, या मांसाहारी की जो बीमारी है वो भी वही बीमारियां जैनियों में भी है, क्योंकि जो महावीर स्वामी ने जो रस त्याग और विगय त्याग की बात की है वो हम फॉलो नहीं करते हैं और हमारी खुराक गलत जा रही है. इसीलिए हम जैनियों भी उतने ही बीमार हैं जितने अन्य है. Okay. So according to you, what is the importance of plant-based foods, especially in these chaotic times?
प्लांट बेस्ड फूड बेसिकली तो हर बार सही थे, मीन्स जब से मनुष्य या पूरे विश्व का ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ, उसके बाद में होते होते सूर्य बना, पृथ्वी बनी, और मानव जब यहाँ पे पृथ्वी पे आया तब उसकी पूर्ण व्यवस्था की ही गई थी। तो आदमी की जो डिजाइन की गई थी, कुदरत ने जो बनाया है, उसने प्लांट बेस्ड डाइट के लिए ही आदमी को बनाया है। उसकी पूरी शरीर की जो रचना है वो प्लांट बेस्ड डाइट के लिए ही है। मांसाहार उसका खुराक नहीं है, उसका शरीर बना ही नहीं न तो वो किसी जानवर को अपने हाथ से मार सकता है, न तो उसको कच्चा खा सकता है, न तो उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर पाता है। तो अपनी शरीर की जब रचना ही नहीं है, तो जो पशु जो है या एनिमल बेस्ड डाइट तो हमारा हो ही नहीं सकता है। और बाकी जो है, जो डाइट है जो हम पका पका के खाते हैं, वो भी तो था ही नहीं। अग्नि तो है ही नहीं, अग्नि तो मानव सर्जित है, और मनुष्य के अलावा कोई भी पकाया हुआ भोजन नहीं खाता है। और मनुष्य के जितना कोई भी प्राणी बीमार नहीं है। इतने सारे अस्पताल, इतने सारे डॉक्टर, इतनी सारी पैथियां और इतनी सारी ट्रीटमेंट, लेकिन सबसे ज्यादा बीमार है मनुष्य है। तो प्रकृति ने हमारी संपूर्ण व्यवस्था की थी, अगर हम उसका पालन करेंगे तो स्वस्थ रहना बहुत स्वाभाविक है, बीमार होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो हमारा सही डाइट है। और आज की तारीख में जब पैंडेमिक की बात हो रही है, हर कोई भयभीत है, तब जो है ये डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये डाइट पे अगर हम नहीं जाएंगे तो ये सोचना कि ये जो कोरोना जो है वो 6 महीने में या 2 महीने में या 2 साल में जाएगा, ये भ्रम ही है। जब तक हमारी लाइफस्टाइल हम चेंज नहीं करेंगे तब तक ये बीमारियां हमारे साथ रहेगी। आज कोरोना है, डरोना है, परसों मरोना वायरस आ जाएगा, तो ये चलते रहेगा। तो जब तक फंडामेंटल चेंजेस नहीं लाएंगे, ये प्रॉब्लम बिल्कुल हमारे साथ रहना ही है। और जितना जितना हम डाइट में जाएंगे, शरीर का स्वास्थ्य तो मिलेगा ही, अपना एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, फिर जो है हमारा स्वभाव चेंज होगा, हम सुख और शांति का अनुभव करेंगे और आध्यात्म के मार्ग पे अपने आप से चले जाएंगे। बिना शास्त्र पढ़े हम धार्मिक हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत स्वाभाविक हो जाएगी। सो दिस इज ऑल स्ट्रेट पाथ, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं। आज हमें जो है स्पिरिचुअलिटी बहुत डिफिकल्ट लगती है या बोरिंग लगती है, उसका एक ही कारण है, वी आर ग्रॉसली ऑन अ रॉन्ग डाइट। और रॉन्ग डाइट लेके आपको हर चीज डिफिकल्ट लगेगी, जैसे पढ़ाई भी डिफिकल्ट लग रही है, बिजनेस भी डिफिकल्ट लग रहा है, स्पिरिचुअलिटी भी डिफिकल्ट लग रही है। उसका कारण है फंडामेंटली वी आर ऑन ए ग्रॉसली रॉन्ग डाइट। तो ये तो हर मोड में चेंज करना है। What drives you to spread the word of veganism or the importance of eating raw food or nature cooked food? देखिए, मैं बचपन से बीमार रहा हूँ, छोटी मोटी बीमारियां रही है बचपन से, है सर्दी खांसी कफ है, ये है वो, और होते होते फिर प्रीमैच्योर हेयर फॉल भी हो गया, फिर डायबिटीज आया, ब्लड प्रेशर आया, कोलेस्ट्रॉल आया। मैंने सब पैथी भी ट्राई कर ली थी, और ये करो वो मत खाओ, ये पैथा, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन सब किया था, कुछ रिजल्ट्स मिले भी होंगे, ना नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे मैं करते गया वैसे मेरा वेट भी बढ़ते गया, पेट भी बढ़ते गया। फिर जब मेरे जो ढूंढता है उससे मिलता भी है, तो मैं ये जो न्यू डाइट सिस्टम है उसका इंट्रोडक्शन सेमिनार में गया था, बहुत छोटा सा था, मैं और मेरी वाइफ गए थे। आपको बता दूं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, डिजाइन एंड डेवलपमेंट की फील्ड में काम करता है, तो कोई भी चीज ऐसे एक्सेप्ट तो नहीं कर लेता हूँ, लेकिन वो मेरे दिमाग में एकदम बैठ गया। मुझे लगा ये 100% सही है, ये एब्सोल्यूट साइंस है, ये अल्टीमेट साइंस है, मुझे ये करना है। और मेरी वाइफ का मुझे सपोर्ट मिला, मैंने किया, मेरे साथ चमत्कार हो गया, और मेरी बीमारियां दूर हो गई, मेरी दवाइयां दूर हो गई, मेरा वेट भी कम हो गया, मेरा पेट भी ठीक हो गया, सब हो गया। तो मैंने सोचा कि जब स्वस्थ होना इतना आसान है, पहले मुझे बताया कि डायबिटीज की गोली तो जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर की लेनी पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल की लेनी पड़ेगी, आज वो छूट गई, मैं ताजगी स्फूर्ति से भर गया। तो मैं बोला जब इतना आसान है तो ये क्यों जन जन तक न फैलाए, क्योंकि हर घर में बीमारी है, हर कोई दुखी है, हर कोई पीड़ित है। तो हमने ये सोचा कि हमारे हिसाब से जो भी होता है वो करना चाहिए, और ये मोटिवेशन मैं और मेरी वाइफ जो है वो जुड़ गए,
एक सेवा की भावना से कि ये जितना भी हम फैलाएंगे उतना सही है, क्योंकि हर घर पीड़ित है। स्वस्थ आदमी ढूंढना आज बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। तो ये हमने एक मिशन पे हम चल पड़े हैं। What are the biggest challenges you are facing today? The biggest challenge that I am facing is that people find it difficult. The reason is क्योंकि वो एडिक्टिव फूड हम खाने के आदी हो गए हैं। कुदरती खुराक जो है एडिक्टिव नहीं है, लेकिन हम हर चीज एडिक्टिव फूड खाने के आदी हो चुके हैं, और एडिक्टिव फूड खा खा के इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमारा आत्मबल टूट चुका है। तो बहुत सारे आते हैं, सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो टिक नहीं पाते हैं। तो उनको कैसे बनाए रखे, कैसे करे, वो एक हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। कैसे उनको मोटिवेटेड रखे, कैसे उनको इंस्पायर करे और ये कम्युनिटी बनाए ताकि ये सब जुड़े रहे, करे और रिजल्ट मिले और ये जन जन तक फैले। क्योंकि हम जब भी प्रोग्राम्स करते हैं 100, 200, 300 और भी ज्यादा लोग आते हैं, सुनते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। किसी को बहुत चमत्कारी लाभ भी हो चुका है, 3rd स्टेज 4th स्टेज कैंसर रिवर्स हो चुका है, डायबिटीज, इंसुलिन छूट गया, ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो असंभव थी वो हो चुकी है। लेकिन ये जो चीज है हर कोई नहीं कर पाता है, तो ये हर कोई कर पाए ऐसी हमारी जो इच्छा है, उसमें मार्ग में जो है विल पावर की कमी जो है वो सबसे बड़ी चैलेंज आती है। और दूसरा जो है ये जो करने का जो इच्छा जो है वो सब में नहीं होती है, उनको डिफिकल्ट लग रहा है। इसीलिए तो इसको कैसे इजी बताया जाए, कैसे घर पे ये बना सकते हैं, और वो अपने घर के किचन में बनाएंगे तो ही ये सक्सेसफुल होगा। बाहर से मिले, ये करे वो करे, इट इज डिफिकल्ट। तो ये जो फैसिलिटीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि घर घर में बने, हर कोई अपने आप से कर ले, और ये जो एडिक्टिव फूड के जो हम आदी हो चुके हैं उसमें से ये डी एडिक्टिव फूड में हम चले जाए, तो ये जो यात्रा है बहुत बड़ी यात्रा है। भारत की आजादी की जो मुहिम चली थी, जो फाइट चली थी, वो भी 100-150 साल से ज्यादा चली थी। तो वहां तो एक सरकार को निकलना था, यहाँ तो फूड हैबिट चेंज करनी है, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन हम हमारे हिसाब से प्रयत्न करते हैं, जितना भी होता है बहुत अच्छा लगता है, और सोचते हैं कि आज नहीं तो आने वाले 25-50 साल में ये क्रांति आएगी एंड पीपल विल बी ग्रॉसली बेनिफिटेड। एंड यस, ये जो हम जो ये स्वर्ग की कल्पना करते हैं, सतयुग की कल्पना करते हैं, वो शायद इसी में से ही आएगी, ऐसी मेरी धारणा है। Can you share something that you have recently discovered? देखिए, डिस्कवरी जो है मेरे ध्यान में जो अभी आई है कि जहां भी हम फेल होते हैं या हम कर नहीं पाते हैं, उसके पीछे एक बड़ा फोर्स है, वो भय। कुछ जो भी चीज में भय साथ में जुड़ जाता है, भय का फ्लेवर अंदर आ जाता है, तो हर चीज डिफिकल्ट हो जाती है। आज जो है बीमारी जो आ गई है, वो बीमारी बड़ी हो ना हो, लेकिन उसके साथ में बहुत बड़ा भय जुड़ चुका है और ये भय हमें मार रहा है। तो भय जो है वो ही बड़ी अड़चन है। और आप भी देख लिए, बचपन से हम आए, बचपन से भी पढ़ाई का अगर में भी कभी भय आया था, खेलने में भी भय आया था, बिजनेस करने में भी भय आता है, बहुत हर एक चीज में भय होता है, भय होता है। और भय के सहारे कोई हमें कमजोर कर देता है और हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये चीज देखा कि एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन ग्रीड एंड फियर। दैट इज द डिस्कवरी दैट एवरीथिंग, आइदर एक ग्रीड आती है तो हम करते हैं, या फियर आती है तो हम दौड़ते हैं, या तो चुप बैठ जाते हैं। तो द होल वर्ल्ड इज वर्किंग अराउंड ग्रीड एंड फियर, ग्रीड। तो ये चक्कर में से हमें निकलना है, ग्रीड के और फियर के चक्कर से हम निकलेंगे तो हम जो है हमारा रियल जो ट्रुथ है, जो सत्य है, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। एंड द रियल फ्रीडम इज व्हेन वी आर कमिंग आउट ऑफ ग्रीड एंड फियर। एंड उसमें जो है हम जो ब्लिस जो एक्सपीरियंस करेंगे, जो शांति अनुभव करेंगे, जो सुख अनुभव करेंगे, वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। So then my following question is that according to you, what is the first step towards moving to face this fear and this greed, to eradicate greed?
हम क्या करें? हाँ, देखिए करना तो एक ही है, पहले तो उसको अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करके फिर उसको अप्लाई करना है। आपके जहां भी है, वट एवर लेवल यू आर, मे बी यू आर इन प्राइमरी स्कूल और मे बी इवन बिलो दिस नर्सरी और वेरेवर यू आर, आपको वहां से धीरे 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 आगे बढ़ना है। जो भी है, आपसे कुछ भी नहीं हो पाता है, मान लो आपसे चाय नहीं छूटती है, तो पहले 4 कप पीते थे, आप भी 3.5 चालू करो या 3 कप करो, धीरे धीरे करो, कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करो और धीरे धीरे करते जाओ करते जाओ। द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग इट, स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग। भैया मैंने ये किया तो क्या एक्सपीरियंस मिला, दूसरे जो कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को भी सुनो। आपको इंस्पायर्ड तो रहना ही पड़ेगा, तो इंस्पिरेशन कहां से मिलेगा? जिनके प्रॉब्लम है उसको देखो, जिन्होंने किया उनको क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं, उनकी जर्नी को देखो और खुद करो, खुद पे अप्लाई करो और देखो धीरे 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 होते रहेगा। अभी टिकने के लिए सेल्फ मोटिवेशन लगेगा, तो ग्रुप में बने रहो, जुड़े रहो, सेल्फ इंस्पिरेशन करो, यही चीज का आप अध्ययन करें, पढ़ाई करें, इनके साथ बातचीत करें, इंटरैक्ट करें और ये सब जो गूगल जो है या ये जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फायदा लेके सही ज्ञान अपने में ले और यहाँ जो कचरा मिलता है उससे दूर हो जाए, तो अच्छे आदमियों से जुड़े और गलत आदमियों से दूर हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके फ्रेंड्स जो है जंक फूड खाने वाले हैं या ये सब कचरा खाने वाले हैं, उनसे धीरे धीरे दूर हो जाइए और ये जो डाइट जो होता है जो कर रहे हैं उनके साथ जुड़ते जाइए, कुछ ना कुछ घर में मोटिवेट कीजिए, घर में कुछ डिश बनाइए, फिर ऐसे ही अपने नेबर्स को या लाइक माइंडेड को बुलाइए, मीटिंग करिए, वीक में एक बार मिलना है, इंटरेक्ट करना है। ये सब जैसे जैसे करते जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस बनते जाएगा और आपको जो बेनिफिट मिला है, आपकी हेल्थ में बेनिफिट मिला है, आपकी एनर्जी लेवल में बेनिफिट मिला है, आप जो रिजुविनेट हो चुके हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी उम्र जो है 63 प्लस है, लेकिन मेरी एनर्जी लेवल इज मच बेटर देन व्हाट आई वाज एट 16। तो ये जो रिजुविनेशन हुआ है, जो ये बहुत चमत्कार है, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। तो ये जो आपको बेनिफिट मिला है वो आपको जन जन तक फैलाना है और बताना है, तो वही जो बेनिफिट उन तक भी पहुंचे। तो ये खुद पे एक्सपेरिमेंट करना है और आपका जो एक्सपीरियंस है फिर लोगों में शेयर करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। तो ये एक जर्नी है और जैसे जैसे आप चलते जाएंगे लोग जुड़ते जाएंगे और ये मुहिम बढ़ती जाएगी। जैसे हमारे में चौहान सर ने स्टार्ट किया, तभी वो अकेले थे, आज पूरे इंडिया में फैल चुका है, अब्रॉड में फैल चुका है और आप सोच नहीं सकते वो कंट्री से भी हमें फोन आते हैं। तो ये फैलता है अपने आप से, बिकॉज रिजल्ट्स है और जब रिजल्ट देखता है हर कोई मोटिवेट हो जाता है। आज जो है कोर नॉन वेजिटेरियन जो है उन्होंने नॉन वेज भी छोड़ा है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी छोड़े हैं एंड ब्रेकिंग ऑल द बैरियर्स। यहाँ पे कोई जात नहीं, धर्म नहीं, भाषा नहीं, प्रांत नहीं, सब एक साथ जुड़ चुके हैं लाइक ए फैमिली, क्योंकि रिजल्ट मिल रहा है। तो आप खुद को इंस्पायर होना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद पे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे और खुद का एक्सपीरियंस ही आपका सत्य है। तो ये सत्य के सहारे आप धीरे धीरे आगे बढ़िए और औरों को मोटिवेट कीजिए। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर सपोज्ड टू डू इट, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इट। Okay, and the last question is, can you describe your food that you eat in one day? See, one thing I'll tell you कि ये जो भी प्रॉब्लम आज की आ रही है, मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम जो है, आप कोई भी कारण दे दो, वायरस है, ये है, वो है, इट इज म्यूटेटिंग वगैरह वगैरह, व्हाटएवर इज सेड, इट्स फाइन, बट रियल रीजन इज ये पिज्जा पास्ता की बीमारी है, ये जंक फूड की बीमारी है, फास्ट फूड की बीमारी है, ये जो भी व्यसन जो है उसकी बीमारी है, शराब की बीमारी है, सिगरेट है, तंबाकू है, लिकर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, हार्ड ड्रिंक्स है, ये सब उसकी वजह से आई है। तो जब तक आप आपका डाइट चेंज नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम में से बाहर नहीं आएंगे। ये आप बहुत ही सीरियसली समझ लीजिए कि डाइट चेंज किए बिना आप सोचेंगे कि कोई दवाई कि किसी की कृपा या किसी के आशीर्वाद या वैक्सीन कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो फंडामेंटली है आपका फिजिकल फूड तो चेंज करना ही पड़ेगा। फिजिकल फूड चेंज करने के बाद में अपने आप से जो है विचार चेंज होंगे, आपके स्वभाव चेंज होंगे
और आपका माइंड भी बहुत प्रफुल्लित हो जाएगा, एंड दैट इज द होलिस्टिक हेल्थ यू विल व्हिच एवरीबॉडी इज लुकिंग आउट फॉर। तो जहां तक मेरे फूड की बात है, मैं सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ या तो मेंटल डाइट लेता हूँ या फिजिकल डाइट लेता ही रहता हूँ। सुबह उठता हूँ तो मेंटल डाइट लेता हूँ, ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ, पृथ्वी को धन्यवाद देता हूँ, पानी को धन्यवाद देता हूँ, वायु को धन्यवाद देता हूँ, सूर्य को धन्यवाद देता हूँ, आकाश को धन्यवाद देता हूँ, वनस्पति को धन्यवाद देता हूँ, और ऑब्वियसली अपने माता पिता जो है वो तो है ही, तो सभी को धन्यवाद देता हूँ। और फिर अपने भीतर उतर के अपनी इम्प्योरिटीज जो है उसकी क्लींजिंग भी करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, भीतर का जो है कचरा है उसको निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मेडिटेशन भी करता हूँ, और फिर थोड़ा सुबह सन बाथ भी लेता हूँ। सी दिस इज मेंटल डाइट बट आई एम टेकिंग इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक मुंह से खुराक है वो है, लेकिन ये खुराक भी लेता हूँ। सुबह जो है मैं सन बाथ भी लेता हूँ, थोड़ा लूजनर एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, फिर 10:30 के आसपास में मैं कुछ जूस ले लेता हूँ, ग्रीन जूस ले लेता हूँ, और फिर उसके थोड़ी देर के बाद में मैं ये और भी जूस ले लेता हूँ। कभी कभी जो लेमन होती है वो छिलके के साथ भी खा जाता हूँ। तो ये सब करता हूँ। फिर दोपहर का जो मेरा खाना होता है वो ज्यादातर सभी मैं सलाद खाता हूँ, वैरायटी के सलाद होते हैं, चटनी के साथ मैं खा लेता हूँ। दोपहर को अगर 3-4 बजे लगेगा तो कुछ फ्रूट खा लेता हूँ। शाम को आके मैं जो है फ्रूट्स खा लेता हूँ, जूस ले लेता हूँ, और बस यही है। फिर उसके बाद मैं रात को सोने के पहले मेरे से जो भी गलतियां हुई या मेरे पूरे जो दिन भर में जो भी मैंने किया है अच्छा बुरा उसका मैं याद करता हूँ, और जो बुरे का जो भी गलत काम हो चुका है उसके लिए क्षमापना लेता हूँ, और अच्छा पढ़ते रहता हूँ। और ये अच्छा पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते मैं सो जाता हूँ, गहरी नींद आती है, फिर से सुबह उठता है। ये मेरी जीवनचर्या है। कभी कभी मैं जूस फास्टिंग पे रहता हूँ, वाटर फास्टिंग पे भी रहता हूँ, कभी कभी मैं वाटरलेस फास्टिंग भी कर लेता हूँ। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग इट, और ये सब करते रहता हूँ। प्रदीप भाई, दैट वाज अ वेरी वेरी इंसाइटफुल इंटरव्यू। और आपका डेली शेड्यूल तो सुन के तो आई थिंक इट्स प्रॉब्ली इम्पॉसिबल फॉर रेगुलर पीपल टू फॉलो इट। सी देखिए, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। आप जब भी इम्पॉसिबल बोलते हैं ना तो आपने ही आपको रोक दिया है। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। द मोमेंट यू प्रोग्राम दैट यस आई कैन डू इट, देन आपके अंदर की इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू डू इट। ना मेरे से नहीं हो सकता, आप लोग से ही हो सकता है। दैट इज वेयर दैट इज द रियल नेगेशन। तो हम सबसे कर सकते हैं, हमारी इनर स्ट्रेंथ है वो हमें सब कुछ करवा सकती है। सो इट्स ऑल पॉसिबल, ओनली थिंग वी हैव टू मेन इट, और हमारा विल पावर चाहिए, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं चाहिए। So that was very inspiring talk that we had. Thank you very much for your time. Thank you and for coming on giving to Compassion Bulletin platform. Yeah, thank you. and giving me valuable opportunity. Thank you.